Hello everybody. So today we would start our discussion on engineering mechanics. So what are we going to study in this topic? Basically here we would see the action of forces on a body. A body might be at rest or a body is in motion. So what can a force do on a body? A force can change the state of rest of body, or it can change the state of motion of body, or it can cause deformations in the body. So engineering mechanics is basically a physical science that is pertaining to the study of action of forces on a body. It's a very broad science, so it is further divided into two major parts. First one is mechanics of solids and second one is mechanics of fluid. Obviously, we would not be studying mechanics of fluids, it would be covered in fluid mechanics. Our study will be only on mechanics of solids. Mechanics of solid is further divided into two categories. First one is mechanics of rigid bodies and second one is mechanics of deformable bodies. Deformable bodies. So what is the difference between a rigid body and a deformable body? A rigid body is one which will not undergo any deformation irrespective of the magnitude of force applied on the body. Whereas a deformable body is one which will undergo deformation on application of forces. Mechanics of deformable bodies would be covered in strength of material. There you will see how the stresses acts on a body and how the strains are introduced, how the failure occurs. We will not focus on mechanics of deformable bodies, it will be covered in strength of material. Here we will be focusing on only mechanics of rigid body. A rigid body is a hypothetical concept because no body in nature is completely rigid. Every body will undergo at least some amount of deformation when it is acted upon by some forces. Mechanics of rigid bodies is further divided into two categories. We would study it into two parts. First one is statics and second one is dynamics. In statics, what we would study? We would study the state of rest or of state of equilibrium of body. Whereas in dynamics, we would be focusing on state of motion, accelerated motion of the body. Dynamics is further divided into two parts. First one is kinematics and second one is kinetics. So we will study dynamics into two parts. First one is kinematics and second one is kinetics. In kinematics, we will study the accelerated motion of body, but we will not talk about the cause of this acceleration. Whereas in the kinetics, we would study the cause of the acceleration. So our engineering mechanics would be basically focused only on rigid body mechanics. In that we would study statics, dynamics, and in dynamics we would study kinematics and kinetics. That's it. So let's start noting now. So mechanics is a branch of physical sciences that is concerned with the state of rest, or motion of bodies subjected to the action of forces. ये डायग्राम नोट कर लीजिए उसके नीचे. So what we would be doing in our online lectures,
I would be dictating the notes as I used to do in the class. So please sit with a note copy and note down every lecture. When I am explaining, just listen. And when I am telling you to write, only then take down the notes, because understanding is very important before taking down notes. And notes are very, very important. Just watching this video won't help a lot. Okay? Note this down. Now let's start with the definition. So let's start with rigid body mechanics. Heading डालिए, rigid body mechanics. Rigid body mechanics. सबसे पहले स्टैटिक्स के बारे में लिखेंगे. स्टैटिक्स डैश. स्टैटिक्स के बारे में लिखिए. ओके. इट डील्स विथ द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर एक्शन ऑफ. इट डील्स विथ इक्विलिब्रियम of bodies under action of forces. So in statics we would study the equilibrium state of bodies under the action of a system of force. Second, dynamics. So it deals with the accelerated motion of bodies. Accelerated motion. It is further divided into two categories. First one is kinematics. So it deals with the accelerated motion without referring to the forces. Without referring to the forces causing the acceleration. Without referring to the forces causing the acceleration. Second one, kinetics. In this we will study the cause of the acceleration. It deals with the motion of body, with the motion of bodies referring to the forces, causing the motion of the bodies, So this is what we will study. First, let us start with statics, then we will move towards dynamics. Please note it down. Now let's start. Let's start with statics. Heading डालिएगा सभी, statics. First listen, understand, then we will note it down. So let's start with statics. Statics start करने से पहले we would understand force. इतनी देर से मैं force कर रहा हूँ, तो हमें force के बारे में पहले डिटेल में पता होना चाहिए. So first we would study about force. So what is a force?
force is any agency which tries to change the state of rest or motion of bodies. मतलब अगर आपने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, हो सकता है बॉडी रेस्ट पे है वो मोशन में आ जाए, हो सकता है एक मूविंग बॉडी है और वो रेस्ट पे आ जाए. बॉडीज डिफॉर्म भी हो सकती है, बट सिंस वी आर स्टडिंग रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, so we will not talk about deformations that is body is undergoing due to application of forces. We will only talk about the state of rest and motion. We will not study deformation here because we are talking about rigid bodies. वैसे तो देखिए आपको पता ही है कि फोर्स स्केलर है या वेक्टर. ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब फोर्स, अगर हमें किसी फोर्स को डिफाइन करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए. मीन्स अगर हमें बोला जाए कि बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको बोला बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले आप उस फोर्स का क्या पूछोगे एग्जामिनर से. ऑब्वियसली सबसे पहले आप क्या पूछेंगे कि सर बताइए उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है. सो द फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड ओनली व्हेन वी नो इट्स मैग्नीट्यूड. सेकेंड चीज क्या पूछेंगे आप एग्जामिनर से कि सर उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है. लाइन ऑफ एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें लाइन ऑफ एक्शन नहीं पता है तो हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे. थर्ड, हम क्या पूछेंगे उनसे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. एंड फोर्थली व्हाट वी वुड आस्क इज आवर डायरेक्शन. लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट. हमें दोनों ही चीज पता होनी चाहिए. इन दोनों का डिफरेंस आपको पता लग जाएगा द मोमेंट वी स्टार्ट स्टडिंग अबाउट सिस्टम ऑफ फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लैडर है, इट इज रेस्टिंग ऑन अ वॉल. तीन पॉइंट्स है, मान लीजिए ए, बी और ये थर्ड पॉइंट है सी. मान लीजिए इस पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका. ऑब्वियसली इट इज 50 न्यूटन. वेरी गुड. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा इसका. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज सी. अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर देंगे तो इस फोर्स का इफेक्ट हमारी बॉडी पे डिफरेंट होगा. ऑब्वियसली अगर मान लीजिए किसी और पॉइंट पे मैंने इस फोर्स को लगाया तो ये सारे रिएक्शंस जो है चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स अपने साथ एक मोमेंट भी कैरी करता है. द मोमेंट वी चेंज द point of application, the moment due to this force about every point will change. This will also change the reaction acting at the point. तो जब भी हमें डिफाइन किया जाए फोर्स तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हर वक्त पता होना चाहिए. नेक्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन क्या है. लाइन ऑफ एक्शन इज वर्टिकल. यहां पे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वर्टिकल. एंड डायरेक्शन क्या है इसका, obviously downwards. This force is acting downwards. तो इस फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए we should know the magnitude, the point of application, the line of action and lastly it is direction. Line of action और direction का भी difference आप appreciate नहीं कर पा रहे. The moment we talk about the system of forces, you will start appreciating the difference between the line of action and direction. पहले सभी फोर्स के बारे में लिखेंगे. फोर्स डैश लिखिएगा, इट इज द एजेंसी विच ट्राइज टू चेंज. इट इज द एजेंसी विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of the body or motion of the body. Full stop. Next हमें लिखिए, force is a vector quantity. Force is a vector quantity
and it is completely specified. Force is a vector quantity and it is completely specified with the following four characteristics, and it is completely specified with the following four characteristics. इसको नोट कर लेंगे सभी, एग्जाम्पल के साथ इसको नोट कर लेंगे. Okay. Now let us start with system of forces. अब हम देखेंगे what are the various system of forces. System of forces देख लेते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ना, बहुत बार हमें क्वेश्चंस में सिस्टम ऑफ फोर्सेस का नाम गिवन होगा. अगर हमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में नहीं पता होगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिस्टम. फर्स्ट इज द कोलिनियर फोर्सेस. कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्स हैविंग अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन आर नोन एज कोलिनियर फोर्सेस. देखिए F1 एंड F2 दे आर हैविंग अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, कोलिनियर फोर्सेस. डायरेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस आर सेम. सो इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस आर सेम then the system is known as collinear forces. Now you can appreciate the difference between the line of action and direction. अगर मैंने लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन को अलग अलग सेपरेट नहीं किया होता तो मैं इस कोलिनियर फोर्स सिस्टम को ही डिफाइन नहीं कर सकता था. सो हियर द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम बट द डायरेक्शन कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट. सो दिस सिस्टम इज नोन एज कोलिनियर फोर्सेस. देन वी हैव को-पैरेलल फोर्सेस. को-पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं? Forces whose line of action are parallel to each other. These type of forces are known as what? Co-parallel forces. Co-parallel forces. Direction same होना जरूरी नहीं है, but the line of action should be parallel to each other. या co-planar parallel forces लिख देते हैं, better रहेगा वो. Because these are in the same plane also. Co-planar parallel forces. Third one is, ऐसा भी एक केस हो सकता है जिसमें हमारे forces co-planar भी है. Co-planar means in the same plane and all the directions are same. This type of system is known as coplanar since it is in the same plane. Coplanar like parallel forces. Coplanar like parallel forces. Correct? Fourth system की तरफ बढ़ रहे हैं हम. Fourth system. Coplanar concurrent forces. Fourth system क्या है? Coplanar concurrent forces. So अगर forces का point of या सारे forces का अगर एक common point of application हो या intersection हो, वो diverge भी कर सकते हैं उस point पे, converge भी कर सकते हैं. This type of system या this type of force system is known as what? Coplanar. Since it is in same plane, concurrent force system. Concurrent forces. Coplanar concurrent forces. Fifth one, obviously coplanar non-concurrent forces. मतलब कि forces का कोई common point of intersection है ही नहीं. Same plane में तो है but concurrent नहीं है, means they don't have a common point of intersection. These type of forces are known as what? Coplanar, non-concurrent
forces, coplanar non-concurrent forces. So first we have seen the coplanar forces. Now we will study the non-coplanar forces. Now let us see the non-coplanar as well. इसको सभी नोट कर लीजिएगा. Let us study the non-coplanar forces now. एक चीज सोचिए आप लोग, क्या कोलिनियर फोर्सेस नॉन कोप्लानर हो सकते हैं? कैन वी हैव अ नॉन कोप्लानर कोलिनियर फोर्सेस? सोचिए जरा. Just think about it. Can we have a non-coplanar collinear forces? अगर मान लीजिए दो फोर्सेस कोलिनियर है, ये दो फोर्स है, दीज आर कोलिनियर, हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो ऑब्वियसली दिस लाइन विल बी कंटेन्ड इन सम प्लेन और द अदर. कोई भी ओरिएंटेशन हो इस लाइन की, ये कभी ना कभी किसी न किसी प्लेन में तो लाई करेगी. तो ऑब्वियसली इफ द फोर्सेस आर कोलिनियर देन दे विल बी कोप्लानर ऑल्सो. ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी. अगर फोर्सेस कोलिनियर है तो 100% दे विल बी कोप्लानर. नॉन कोप्लानर कोलिनियर फोर्सेस एब्सर्ड थिंग, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते. नॉन कोप्लानर फोर्सेस कैन बी पैरेलल, लाइक द एग्जांपल इज दिस वन. नॉन कोप्लानर, so x, y, z axis. So this is the various forces. Their line of action are parallel to each other. This type of system is known as what? Non-coplanar, since they are not in same plane. Non-coplanar parallel forces. Similarly, अगर इनका डायरेक्शन सेम होगा, सो उसको क्या बोलेंगे आप? ऑब्वियसली नॉन कोप्लानर लाइक पैरेलल फोर्सेस. अगर डायरेक्शन सेम हो जाए तो इसको क्या बोलिएगा? नॉन कोप्लानर लाइक पैरेलल फोर्सेस. सेवेंथ, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस. क्या नॉन कोप्लानर फोर्सेस कॉन्करेंट हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं. देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको. ये एक सिस्टम ऑफ फोर्स है, दीज आर नॉन कोप्लानर, बट ऑब्वियसली दे आर कॉन्करेंट. आप देखो ये कॉन्करेंट है बट दे आर नॉन कोप्लानर. तो ऑब्वियसली नॉन कोप्लानर फोर्सेस कैन बी कॉन्करेंट. सो दिस इज नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस. नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट. लास्ट वन वुड बी नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. उसको भी ड्रॉ कर देता हूं, इसको आप लिख लेंगे 6th and 7th. लास्ट देखते हैं 8th वाला. 8th one, let us see the 8th one now. Non coplanar non concurrent forces. Obviously this can happen. Generic case, देखिए कब होगा ऐसा? ये हमारी एक्सिस है तीनों, एक फोर्स सिस्टम है, देखिए ऐसा है फोर्स सिस्टम. So this force system is non-coplanar and it is non-concurrent also because all the forces does not have a common point of intersection. तो इसको क्या बोलेंगे आप? Non-coplanar, non-concurrent forces. Okay? इसको भी नोट कर लेंगे सभी. तो सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम की बातचीत चालू करते हैं. तो ये तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस था. नाउ वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, इसको भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है. जब हम फोर्सेस को डील कर रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस. हेडिंग डालेंगे सभी, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस. रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस.
कैसे डिफाइन करेंगे आप फोर्सेस के रिजल्टेंट को? हाउ वी वुड डिफाइन द रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स? बहुत सिंपल है इसको डिफाइन करना. अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस when replaced by a single force such that the effect of the system of force and effect of that single force is same, then that single force is known as the resultant of force. मतलब कि अगर एक बॉडी पे एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स सिस्टम लग रहा है, उन सारे फोर्सेस को मैं केवल एक फोर्स से रिप्लेस कर दूं सच दैट उस सिंगल फोर्स का इफेक्ट और सिस्टम ऑफ फोर्सेस का इफेक्ट सेम हो, तब उस सिंगल फोर्स को हम बोलते क्या है? रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस. सो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज अ सिंगल फोर्स सच दैट इट्स इफेक्ट एंड द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इफेक्ट ऑन द बॉडी इज सेम. अब क्या है, रिजल्टेंट निकालने के हमारे पास दो तरीके. What are the two methods through which we would be calculating the resultant of forces? First one is the parallelogram law of forces. सुना भी होगा आपने, वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. एंड सेकेंड वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस. सो देयर आर टू लॉज. First one is parallelogram law of forces and second one is the polygon law of forces. इन दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. सबसे पहले we would study the parallelogram law of forces, but उससे पहले आप resultant of force के बारे में लिखिएगा. लिखना स्टार्ट करिए. It is a single force that can replace. It is a single force that can replace two or more than two forces. It is a single force that can replace two or more than two forces. Two or more than two forces acting at a point. Acting at a point with the same effect. Acting at a point with the same effect. Full stop. It is computed using. It is computed using, लिख लीजिए A, parallelogram law of forces, B लिखेगा polygon law of forces. Okay. Now let's proceed with parallelogram law of forces first. Heading डालिए सभी, parallelogram law of forces. बड़ा सिंपल सा है लॉ, ध्यान देंगे सभी. Parallelogram law of forces. फर्स्ट वन, ये कब यूज होता है? व्हेन वी हैव टू कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस. दिस लॉ विल बी यूज्ड ओनली व्हेन वी हैव टू कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस. मान लीजिए दो फोर्सेस हैं, दे आर कोप्लानर एंड दे आर कॉन्करेंट ऑल्सो. F1 F2 वेक्टर है, F1 F2 फोर्स है, दे आर कोप्लानर एंड ऑब्वियसली दे आर कॉन्करेंट. इनका जो है रिजल्टेंट निकालना है हमें. तो हमें क्या पता है? इनके मैग्नीट्यूड्स पता है, इनका डायरेक्शन पता है और इनके बीच का एंगल पता है. मान लीजिए द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज दिस, थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स. अब ध्यान रखिएगा आप एक चीज, अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल गिवन है तो कौन सा एंगल होगा वो? ये भी एक कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को. सर देखिए, दो एंगल्स हैं, इन दो लाइंस के बीच में तो दो एंगल है, एक θ1 है और एक θ2 है. जब हमें बोला जाए इन फोर्सेस के बीच का एंगल, तो हम कौन सा एंगल लेंगे? θ1 लेंगे कि θ2 लेंगे? तो रूल याद रखिएगा, वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक टेल होता है और एक हेड होता है. तो whenever we are seeing the angle between the vector, then the vector should either diverge or they should either converge. Like देखिए यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स क्या है? डाइवर्ज कर रहे हैं. इन दोनों के टेल को टेल मिलाना है. इस वेक्टर का टेल उठाइए, इस वेक्टर का टेल उठाइए, मिला दीजिए. फिर जो एंगल बनेगा बिटवीन द वेक्टर्स, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द फोर्सेस और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. कन्वर्जिंग पार्ट भी सेम ही है. क्लियर? मुझे इन दोनों के
रिजल्टेंट निकालना है, वी नीड टू कंप्यूट द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है रिजल्टेंट निकालना। अब देखिए हमें दो फोर्सेस गिवन है और हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोल रहा है, हमें पैरेललोग्राम बनाना है। तो हम इन वेक्टर्स को उठाते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। पहले मैंने F1 वेक्टर को उठा लिया, फिर मैंने F2 वेक्टर को उठाया। ऑब्वियसली अभी तो पैरेललोग्राम बना नहीं है, अब मैं पैरेललोग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब क्या है, आप F1 का पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करिए। यहां ड्रॉ कर दिया और एक लाइन यहां पर भी ड्रॉ कर दिया। ये F2 के पैरेलल है। अब दिख रहा है पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो प्रिंसिपल डायगोनल है, दिस वन, दिस डायगोनल, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। इसी बड़े वाले डायगोनल या इस डायगोनल को, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इस वाले डायगोनल को हम बोलेंगे क्या, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। ऑब्वियसली अब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करने के लिए इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यही है। अब बस हमें क्या डिफाइन करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और क्या निकालना है, ये एंगल। अगर मैं ये एंगल निकाल लेता हूं अल्फा और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, देन वी विल कंप्लीटली डिफाइन दिस रिजल्टेंट फोर्स। तो निकालना चालू करते हैं इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट कंप्यूटिंग। अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जस्ट सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। आप देखते जाइए, फॉलो करिएगा सभी। एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा था, ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखिएगा, देखिए ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें ये वाला कंपोनेंट क्या है, दिस इज F2 साइन थीटा, दिस इज व्हाट, F2 साइन थीटा। और ये क्या है, F2 कॉस थीटा, F2 कॉस थीटा। इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, ये इसका हाइपोटेनियस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, FR स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा कॉमन ले लीजिए, तो FR स्क्वायर क्या आ गया, F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जरा, F2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो FR क्या आ गया फिर हमारा, FR इज इक्वल टू क्या आया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बचपन में आपने एक कोसाइन रूल पढ़ा होगा, ये उसी से मिलता जुलता है। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट, या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर डिवाइडेड प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। अगर बस मैंने FR लिखा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। दो तरीके होते हैं मैग्नीट्यूड को दिखाने के, या तो बस FR लिखते हैं लोग, या फिर FR के ऊपर पहले एरो लगा के मॉड लगा दिया, इसका भी मतलब मैग्नीट्यूड है, इस साइन का भी मतलब मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए मुझे अल्फा बताना है, तो एंगल अल्फा को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए एंगल अल्फा कैलकुलेट करना, मैं एंगल अल्फा भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। वापस से बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, टैन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। इस तरीके से आप FR भी निकाल सकते हैं और एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड F1 वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने अल्फा और FR डिफाइन कर दिया, आपने FR को भी या रिजल्टेंट ऑफ फोर्स भी कंप्यूट कर लिया। दिस लॉ इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। मान लीजिए F1 और F2 का मैग्नीट्यूड फिक्स है, हमें वो एंगल निकालना है थीटा जिसके लिए FR की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। तो जरा सोचिए और मुझे बताइए कि FR मैक्सिमम कब होगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। F1 F2 का मैग्नीट्यूड फिक्स है,
एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, सोचिए और मुझे बताइए जरा। सो लेट्स सी एफ आर मैक्सिमम कब होने वाला है। एफ आर इज मैक्सिमम व्हेन, सबसे पहले एफ आर इज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा देखो, फॉर अ गिवन f1 एंड f2 एफ आर मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, सो व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर f1 शुड बी पैरेलल टू f2 वेक्टर। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाए, इन दैट केस जो एफ आर मिलेगा दैट वुड बी मैक्सिमम। और एफ आर मैक्स कितना होगा, एफ आर मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, f1 प्लस f2, f1 प्लस f2। क्लियर है। सिमिलरली एफ आर की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब cos थीटा अपनी मिनिमम वैल्यू पे हो। cos थीटा अपनी मिनिमम वैल्यू पे कब होगा, दैट इज व्हेन cos थीटा इज -1। सो एफ आर इज मीन cos थीटा 0 नहीं, ध्यान रखिएगा इसको, व्हेन cos थीटा इज व्हाट -1, दैट इज दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है कि द फोर्सेस शुड ऑपोज ईच अदर, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 180 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर F1 फोर्स ऐसे है तो F2 फोर्स ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इन दैट केस एफ आर वुड बी मिनिमम, एंड एफ आर मिनिमम देखिए मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया F1 माइनस F2, कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा -1 होगा तो इट विल कम आउट टू बी F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू FR minimum is what, F1 minus F2. Lastly, if cos theta is equal to 90 degree, तब ना ही ये मैक्सिमम होगा ना ही ये मिनिमम होगा। So when cos theta is equal to 90 degree, FR क्या हो जाएगा, सिंपली F1 square plus F2 square, क्योंकि उस समय cos 90 डिग्री क्या होता है 0। क्लियर है मेरी बात। दिस इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो याद रखिएगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 FR मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 0, दैट इज F1 इज पैरेलल टू F2 वेक्टर, and FR is minimum when cos theta is -1, means they both are opposing each other, and FR minimum is equal to F1 minus F2, and if cos theta is equal to 90 degree, then FR will be given as F1 square plus F2 square. This is neither maximum nor minimum. Clear है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस था। नाउ वी विल सी पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस कब यूज करेंगे, व्हेन देयर आर मोर देन 2 फोर्सेस। अगर 2 से ज्यादा फोर्सेस हो तब पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस यूज करेंगे। देखिए पॉलीगन लॉ में जाने से पहले ना एक ट्राइंगल लॉ भी होता है। ये पैरेललोग्राम लॉ का मिलता जुलता पार्ट है। देखिए मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। नोट में लिखेंगे, जब भी मैं बोलूं नोट में लिखेंगे, आप ऐसा नोट लिख के वो पॉइंट इसके नीचे लिखेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर डिस्कशन। मान लीजिए ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी होता है, इसमें हम ट्राइंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए मुझे वापस F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालना है, तो आप पहले F1 वेक्टर निकाल लेंगे। यही था ना हमारा, ये F2 वेक्टर था और ये हमारा था F1 वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से निकालेंगे। पहले F1 वेक्टर निकाल के लाइए। F1 वेक्टर ले आया, दिस इज आवर F1 वेक्टर। अब F2 वेक्टर को उठाएंगे और F2 वेक्टर के टेल को पकड़ के F1 वेक्टर के हेड पे लगा देंगे इस तरीके से। दिस इज व्हाट, F2 वेक्टर। इस तरीके से लगा दिया हमने। अभी ट्राइंगल बना नहीं है, अभी एक और साइड चाहिए ट्राइंगल की, ये वाली साइड। तो जो थर्ड साइड है that will represent a vector whose tail is at the tail of F1, मतलब starting point of this F1, and whose head is an ending point of this F2. So this one,
दिस इज आवर FR वेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। पैरेललोग्राम लॉ जैसा ही है, एकदम सेम वही रिजल्ट्स यूज होंगे, यही अल्फा होगा, यही थीटा होगा, एंड वी विल यूज द सेम रिजल्ट्स। रिजल्ट वोंट बी चेंजिंग, जस्ट वहां पे पैरेललोग्राम बना रहे थे, इधर हम ट्राइंगल बनाएंगे। इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? ओके, सो कोई अलग लॉ नहीं है, बस नाम दे दिया है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स। इसको नोट कर लीजिएगा सभी। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या देखते हैं जरा डिटेल में। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, सेकेंड वन। जब दो से ज्यादा फोर्सेस होंगे हमारे पास, इन दैट केस वी विल यूज द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो मान लीजिए दो से ज्यादा फोर्सेस हो गए हमारे पास। लेट्स सी दीज आर द फोर्सेस। देखिए जरा, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज मान लीजिए F3 एंड दिस इज F4। इन सब का रिजल्टेंट निकालना है। बचपन में आप क्या करते थे, आप इन सब का कंपोनेंट्स ले लेते थे। लाइक F1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये मान लीजिए F1x और ये y कंपोनेंट हो गया F1y। F2 के भी दो कंपोनेंट ले लीजिए, F2y और ये क्या हो जाएगा F2x। F3 के भी दो कंपोनेंट सिमिलरली, F3x and this one will be F3y। F4 के भी दो कंपोनेंट ले लीजिए, F4y and F4x। कंपोनेंट ले लिए। अब x के x कंपोनेंट को ऐड कर लीजिए और y कंपोनेंट्स को। मतलब FR वेक्टर क्या होगा, समेशन ऑफ FIX, सारे x कंपोनेंट्स को बस ऐड कर दीजिए, I कैप। I इज इक्वल टू 1 to 4 प्लस FIY, FIX and FIY, I इज इक्वल टू 1 to 4। तो आप करेंगे भाई, हर एक फोर्सेस का x कंपोनेंट लीजिए, y कंपोनेंट लीजिए, x कंपोनेंट को इंडिविजुअली ऐड कर दीजिए, y कंपोनेंट को इंडिविजुअली ऐड कर दीजिए, एंड इफ यू विल गेट व्हाट, FR वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसी चीज को ना कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर करना हो, देन वी विल हैव पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। पॉलीगन लॉ में देखो क्या, हम एग्जाम में तो हर वक्त ऐसे ही करेंगे, आप x कंपोनेंट लीजिए, y कंपोनेंट लीजिए, दैट्स इट। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस देखिए क्या बोलता है, हम पॉलीगन बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले F1 वेक्टर लीजिए, मैंने F1 वेक्टर लिया, ड्रॉ कर लिया, देखिए ये रहा मेरा F1 वेक्टर। F2 वेक्टर लिया मैंने, F2 वेक्टर ले लिया, ये देखिए इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये देखिए F2 वेक्टर। फिर F3 वेक्टर लीजिए, ये रहा हमारा देखिए F3 वेक्टर, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ F2 वेक्टर। F4 वेक्टर ले लीजिए, F4 वेक्टर। अब ये पॉलीगन क्लोज नहीं हुआ, इस पॉलीगन को क्लोज करने के लिए हमें एक लास्ट साइड चाहिए, एंड दैट लास्ट साइड शुड स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड इट शुड एंड एट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। यही हमारा लास्ट वाली चीज है, दैट इज FR वेक्टर। बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, पॉलीगन बना के आप कभी भी एग्जाम में एनालिसिस नहीं करेंगे। यू विल ऑलवेज गो बाय दिस एक्सप्रेशन, FR वेक्टर, x और y कंपोनेंट लीजिए और सिंपली ऐड कर लीजिए अगर आपके पास दो से ज्यादा फोर्सेस गिवन है एग्जाम में। एक चीज और समझिए, अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देंगे इन फोर्सेस की, इफ यू चेंज द सीक्वेंस ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन चेंज हो सकता है but the resultant force will remain same, that is vector addition is commutative। किसी भी सीक्वेंस में आप इनको ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, it is always the same। the polygon can change but the resultant will be same। हमारा एम पॉलीगन ड्रॉ करना नहीं है, हमारा एम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी सेम, किसी भी सीक्वेंस में आप इसको ऐड करिए। क्लियर है? कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके ऊपर।
क्लियर? ओके, इसको नोट कर लेंगे सभी. So till now we have discussed the Polygon law of forces. So this is a question, let's try attempting this question. Two forces act at a point. The first force has x and y components of 3 Newton and minus 5 Newton respectively. The resultant of these forces falls on the x-axis and has a magnitude of minus 4 Newton. Find the x and y components of the second force. बहुत सिंपल है. क्या बोला जा रहा है? हमारे पास एक फोर्स है, उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स क्या है? दैट इज F1 वेक्टर. क्या दे रखा है हमें? F1 वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप. उसका x कंपोनेंट 3 है एंड y कंपोनेंट 5 है. द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस फॉल ऑन द x एक्सिस. रिजल्टेंट इसका जो है x एक्सिस पे, मींस Fr वेक्टर इज इक्वल टू क्या? Fr i कैप. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड केवल x डायरेक्शन में, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है? -4 लगा ही देता हूं फिर तो यहाँ पे -4i कैप. फाइंड द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड फोर्स. सेकेंड फोर्स ऐसे लिख देता हूं, F2 वेक्टर इज F2x i कैप प्लस F2y j कैप. मुझे F2x और F2y तो निकालना है. देखो कितना सिंपल होगा. Fr वेक्टर को क्या लिख सकते हैं आप? Fr वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, है ना? Fr वेक्टर है क्या? दिस इंप्लाइज -4i कैप इज इक्वल टू क्या? i कैप को i कैप के साथ जोड़ दीजिए, 3 प्लस F2x i कैप प्लस F2y -5 j कैप. देखिए अब j कैप तो 0 है यहाँ पे, i कैप को i कैप के साथ कंपेयर करिए, j कैप को j कैप के साथ. दिस इंप्लाइज F2y इज इक्वल टू कितना होगा? 5 न्यूटन एंड F2x इक्वल टू कितना होगा? -7 न्यूटन. क्लियर है क्या? सो द x एंड y कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इज -7, -5. -7, 5 is the correct answer. सिंपल था एकदम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी. द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is acting at a point is 18 and the magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 degree, with the force of smaller magnitude,
magnitude, then find the magnitude of forces, then find the magnitude of forces. पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या बोला जा रहा है, दो फोर्सेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स का सम क्या है, 18, मीन्स टू फोर्सेस आर देयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर, द समेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज 12, एंड रिजल्टेंट इज perpendicular to the force of the smaller magnitude. That is, if F1 is less than F2, then Fr vector is perpendicular to F2 vector. Sorry, F1 vector. Smaller magnitude के perpendicular है। अब हमें F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, that's it। इसको अप्रोच करना है हमें। ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जब भी क्वेश्चंस आएंगे या मैकेनिक्स पार्ट के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी ये अप्लाइड होगा, जब भी आपको स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आए बस स्टेटमेंट मत पढ़ते रहिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है। ट्राई टू डिपिक्ट ऑल द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। पहले एक डायग्राम बना के उसमें एक सारा डेटा फिट करेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। इस केस में सबसे पहले मैं रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करता हूं, जो भी डेटा गिवन है उसको एक डायग्राम के फॉर्म में शो करता हूं। तो क्या बोला जा रहा है, देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, एफ आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू F1 वेक्टर। देखिए मैंने बना लिया, ये एफ आर वेक्टर है, F1 वेक्टर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रिजल्टेंट है दो वेक्टर का। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम रिजल्टेंट को भी देखिए ऐसे शो कर सकते हैं ना, ये F2 वेक्टर होगा, देन लेट्स सी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज व्हाट, FR वेक्टर। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज व्हाट, FR वेक्टर। सिंपल ट्राइंगल लॉ आप देख सकते हैं। ट्राइंगल लॉ से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, उसमें अब हाइपोटेनियस क्या है इस बार, F2, तो बस एक बार हाइपोटेनियस लिखिए और काम खत्म करिए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक और इक्वेशन मैं फाइंड कर लेता हूं, दैट इज व्हाट, F2 स्क्वायर is equal to F1 square plus FR square. This implies F2 square minus F1 square is equal to what, 18 का स्क्वायर। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 3। एक काम करिए, अब F1 को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 F2 को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। चलिए, तो F2 कितना होगा, सॉरी ये 12 का स्क्वायर होगा, दिस विल बी 12 स्क्वायर। ओके, अब सही है। तो F2 स्क्वायर कितना होगा, 18 माइनस F1 का होल स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 12 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस 36 F1, F1 स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू क्या, 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो F1 कितना आ जाएगा, 5, F1 कितना आ जाएगा, 5, एंड F2 कितना आ जाएगा, 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 30। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 5 एंड 30। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट अब स्टैटिक्स में और बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी विल स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस या इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस। So there are certain basic conditions of equilibrium, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, बस इसमें ध्यान देना था हमें कि ट्राइंगल बना लेते हैं तो आराम से सॉल्व हो जाता है। Equilibrium of bodies.
equilibrium of bodies. What are the basic conditions of equilibrium for non-coplanar forces? For non-coplanar forces, that is 3D case. 3D case हो जाएगा ये. A body is said to be in equilibrium. ये तो आपने पढ़ा ही है. If क्या कंडीशंस है वो? सबसे पहला, summation of fx should be equal to 0. सेकेंड कंडीशन क्या होगा? ऑब्वियसली समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0. थर्ड कंडीशन क्या है? समेशन fz इक्वल टू 0. सिर्फ फोर्स इक्विलिब्रियम से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू सी द मोमेंट इक्विलिब्रियम ऑल्सो. सो द फोर्थ कंडीशन वुड बी सिग्मा mx इक्वल टू 0, सिग्मा mz इक्वल टू 0, my equal to 0, and lastly sigma mz equal to 0. So these are the 6 conditions of equilibrium for non-coplanar forces. Similarly, if we have a coplanar force, अगर forces coplanar हो तब क्या करेंगे? For coplanar forces, that is 2D case. मान लो XY प्लेन में फोर्स, तब 6 कंडीशन नहीं होगी, 3 कंडीशन होगी. कौन कौन सी? सिग्मा mx 0, सिग्मा fy 0, एंड लास्टली सिग्मा mz 0. सॉरी, सिग्मा mz 0. सो दीज आर द 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0 एंड सिग्मा mz 0. ऑब्वियसली जब XY प्लेन में फोर्सेस होंगे तो मोमेंट्स केवल z डायरेक्शन में होगा. क्लियर है? इट इज ओनली अबाउट z एक्सिस. ये तो आप समझते ही हैं. मोमेंट x y z का मतलब क्या है? देखिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, जिनको तकलीफ हो रही है एक बार देख लीजिएगा. मान लीजिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z. x एक्सिस की तरफ मोमेंट का मतलब क्या है? मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, अबाउट x एक्सिस. दिस इज mx. सिमिलरली my का मतलब क्या है? अबाउट y एक्सिस. mz का मतलब क्या है? अबाउट z एक्सिस. क्लियर है? जब x और y कंपोनेंट में फोर्स होते हैं तो सारा का सारा मोमेंट आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, दैट इज इट इज अलोंग द z एक्सिस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लैमीज थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैमीज थ्योरम. इसको देखते हैं. What is Lami's theorem? Let's see first. इसको नोट कर लीजिएगा सभी. Proceed. Lami's theorem. What is Lami's theorem? So Lami's theorem is applicable only when we have 3 coplanar concurrent forces and body should be in equilibrium. तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है. पहला क्या? कि केवल 3 ही फोर्सेस लगे. दूसरा क्या? कि वो तीनों फोर्स कोप्लानर भी और कॉन्करेंट भी. एंड थर्ड वन इज व्हाट? That the body should be in equilibrium. So what does Lami's theorem states? Lami's theorem states that if a body is in equilibrium due to the action of 3 coplanar concurrent forces, then the magnitude of force is proportional to the sine of the angle between the other 2 forces. मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं? ऐसे तो नहीं समझ में आया हमें. बोलना क्या चाह रहे हैं? मान लीजिए 3 फोर्स है. These are the 3 forces. F1 वेक्टर मान लीजिए, F2 वेक्टर एंड दिस इज F3 वेक्टर. ये मान लीजिए अल्फा है, ये मान लीजिए बीटा है और ये एंगल मान लीजिए गामा है.
तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, तीनों कॉन्करेंट एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो लैमीज थ्योरम स्टेट्स दैट बाय लैमीज थ्योरम, क्या बोल रहे हैं लैमी जी? F1 by sin alpha, force is proportional to the sine of the angle between the other two forces, means F1 by sin alpha is equal to what? F2 by sin beta divided by या equal to F3 by sin। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, बहुत सिंपल है इसको प्रूफ करना। लेट्स सी द प्रूफ वंस। इसका एक बार मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, एक बार इसका प्रूफ देखिएगा सभी। लेट्स सी द प्रूफ। प्रूफ देखिए इसका। ट्राइंगल बनाते हैं एक बार, फोर्स ट्राइंगल बनाते हैं इसका। सबसे पहले क्या लीजिए आप, F1 वेक्टर ले लिया मैंने, दिस इज F1 वेक्टर। देन वी हैव द F2 वेक्टर एंड लास्टली क्या है, F3। अरे ये क्या हुआ, ये ट्राइंगल तो क्लोज हो गया। क्या जरूरी है ट्राइंगल क्लोज होगा? ऑब्वियसली ये ट्राइंगल क्लोज होना चाहिए। अगर ये ट्राइंगल क्लोज नहीं है, मींस देयर इज सर्टेन रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो एक चीज हमें समझ में आई कि इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, then the force triangle or the polygon formed should be a closed one such that the resultant force should be 0। तो ऑब्वियसली ये क्लोज होगा। अब सारे एंगल्स दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए अल्फा क्या है, F2 और F3 के बीच का एंगल, ये बाहर वाला एंगल ऑब्वियसली। दिस एंगल इज व्हाट, अल्फा। F1 और F3 के बीच का एंगल क्या है, बीटा। एंड F1 और F2 के बीच का एंगल क्या है, गामा। तो अंदर वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस अल्फा। ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस गामा। और ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। तो बाय साइन रूल हम क्या बोल सकते हैं, बाय साइन रूल सिंपल है, F1 बाय साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा is equal to F2 by sine of 180 minus beta is equal to F3 by sine of 180 minus gamma। क्लियर है? बाय साइन रूल हम ये रूल बोल सकते हैं। साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। साइन 180 माइनस बीटा क्या होता है, साइन बीटा। एंड सिमिलरली साइन गामा। इस तरीके से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो लैमीज थ्योरम इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल। याद रखिएगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। लिखना चालू करिए इसके बारे में, लिखिएगा लैमीज थ्योरम लिखिए। इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, it states that if a body is in equilibrium under the action of only three coplanar concurrent forces, comma, each force is proportional to the sine, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces, the sine of the angle between the other two forces, sine of the angle between the other two forces। इसको नोट कर लीजिएगा सभी इसके नीचे। नाउ नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज वेरिग्नॉन्स थ्योरम। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सिंपल है भी। इट इज ओनली एप्लीकेबल when we have again coplanar and concurrent forces। मान लीजिए दो coplanar concurrent force हैं,
we have two coplanar concurrent forces. ये F1 है और ये F2 है. अब मान लीजिए इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट रहा ये, दिस इज Fr वेक्टर. मान लीजिए कोई थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, O पॉइंट. इस पॉइंट के अबाउट मैं सारे फोर्सेस का मोमेंट निकालना चाहता हूँ. तो मोमेंट अबाउट अ पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे. सबसे पहले मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 1 पे, इसको बोल दिया D1. फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 2 पे, F2 पे, इसको बोल दिया D2. और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया डेट इज Fr पे, उसको बोल दिया है D. तो व्हाट डज वेरिग्नॉन्स थ्योरम स्टेट्स दैट? वेरिग्नॉन्स थ्योरम स्टेट्स दैट the algebraic sum of the moments of system of forces is equal to the moment of the resultant force about the same moment center. मतलब कि मान लीजिए F1 और F2 का मोमेंट निकालते हैं, algebraic sum of moment. तो F1 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, F2 का मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज. वो कितना है, F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस किया क्योंकि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट दैट इज Fr इंटू डी. रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन भी तो यही था. रिजल्टेंट फोर्स क्या है कि वो सिंगल फोर्स जिसका इफेक्ट और सिस्टम ऑफ फोर्सेस का इफेक्ट क्या हो, सेम. इफेक्ट में मोमेंट भी आ गया, सच दैट रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट किसी मोमेंट सेंटर के अबाउट और इंडिविजुअल फोर्सेस का मोमेंट किसी मोमेंट सेंटर के अबाउट सेम है. तो ये कोई नया लॉ नहीं है, तो आप बहुत बार यूज भी करते थे. आज इसको मैंने एक नाम दे दिया, दैट इज वेरिग्नॉन्स थ्योरम. लिखना चालू करेंगे इसके बारे में, लिखिए जरा. द एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स, द एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, of coplanar forces about a moment center, about a moment center is equal to the moment of their resultant force, is equal to the moment of their resultant force about the same moment center, is equal to the moment of the resultant force about the same moment center. इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा. लास्ट देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. अभी तक हमने जो भी रिजल्टेंट देखे दैट वाज द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स. मान लीजिए अगर फोर्सेस नॉन कॉन्करेंट हो तब उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए. बहुत सिंपल है, एक फ्लो चार्ट की तरह समझेंगे हम इसको. रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, इसको भी देख लेते हैं. Resultant of मान लीजिए फोर्स सिस्टम है दैट इज नॉन कॉन्करेंट. मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, F1 वेक्टर, F2 vector and lastly it is F3 vector. मान लीजिए मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है. अभी तक हमने जो भी लॉज पढ़े, पैरेललोग्राम या पॉलीगन, दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस. मतलब हमें केवल कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना आता है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉन्करेंट बना लेते हैं, काम हो जाएगा. एक कॉमन पॉइंट पर इसको शिफ्ट कर लीजिए. मान लीजिए वो पॉइंट है O, इसका पोजीशन वेक्टर हर फोर्सेस का पता है, यहाँ से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर. मान लीजिए तीनों पोजीशन वेक्टर पता है. जब आप सारे फोर्सेस को O पर शिफ्ट करेंगे तो फोर्स अकेला नहीं आता, अपने साथ क्या लेके आता है, मोमेंट. Whenever you change the point of application of force, so it is also accompanied by a moment. Moment को कैसे निकालते हैं याद रखिएगा. देखिए वेक्टर डेफिनेशन मोमेंट का R क्रॉस F वेक्टर.
इट इज नॉट एफ क्रॉस आर, क्या होता है वो आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो मैं सारे फोर्सेस को शिफ्ट कर लेता हूं ओ पॉइंट पर, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट किया मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इनका मोमेंट भी एक। तो मान लीजिए F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर, सबको मैंने यहाँ पे O पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। साथ साथ एक मोमेंट भी आएगा, दैट इज MO, कोप्लानर फोर्सेस एंड मोमेंट इज ओनली अलोंग द Z एक्सिस। सो MO वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, MO वेक्टर क्या होगा, ये R1 क्रॉस F1 वेक्टर, R2 क्रॉस F2 वेक्टर प्लस R3 क्रॉस F3 वेक्टर। देखिए कितना सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्लो चार्ट में आप इन सब का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट निकालेंगे तो मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, FR O पॉइंट और MO। FR क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3। देखिए अब ये सिंगल फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट जब भी निकालते हैं तो सिस्टम ऑफ फोर्स को सिंगल फोर्स से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे तो फोर्स भी है और मोमेंट भी है। अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये नहीं है, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालना है। उसके लिए फिर आप क्या करिएगा, इसको शिफ्ट करिए यहां से, मतलब ये हमारा FR है और ये हमारा पॉइंट O है। इट इज नॉट एक्टिंग एट O, वो कुछ दूर होगा, मान लीजिए R वेक्टर, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज MO वेक्टर इक्वल टू क्या, R वेक्टर क्रॉस FR वेक्टर। एक ही अननोन है R वेक्टर, इससे आप आराम से निकाल लीजिएगा R वेक्टर को, तो R वेक्टर भी मिल जाएगा, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ FR भी मिल गया, और हमें क्या मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो सिंपल था। इस तरीके से आप कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का भी रिजल्टेंट निकाल सकते। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं जनरली, बट हाँ कुछ पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आप याद रखिएगा, नोट कर लेंगे सभी इसको। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपको एक बुकलेट मिली है, हम उस बुकलेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो जब भी आप इस सेशन में बैठ रहे हैं बुकलेट जरूर लेके बैठें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुकलेट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपकी वर्कबुक के चैप्टर 1 से फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद इट। इक्विलिब्रियम प्लेन ट्रस वर्चुअल वर्क, चैप्टर 1। सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट लेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। क्या हम सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में ही करेंगे? आप भी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे साथ साथ। जिसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया आप देख लीजिएगा, बाकी करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं सबसे पहले, सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। वर्कबुक अगर कंप्लीट हो जाए तो इट इज मोर देन इनफ। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा क्लास में, दैट इज मोर देन इनफ। और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। The force F such that bars AC and BC as shown in figure are identically loaded is। देखिए क्या बोला जा रहा है। ये बार्स हैं हमारे, ए बी, और ये क्या है हमारा सी पॉइंट। ये एंगल कितना है 60 डिग्री। दिस फोर्स इज एफ फैक्टर एंड ये कितना है 100 किलो न्यूटन। ये एंगल दे रखा है हमें 45 डिग्री। बोला गया फोर्स एफ निकालिए सच दैट AB एंड BC इज व्हाट आइडेंटिकली लोडेड। हमें वो फोर्स निकालना है जिससे लोडिंग आइडेंटिकल हो। लोडिंग आइडेंटिकल का मतलब नेचर भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मींस अगर AC बार में फोर्स टेंसाइल है तो BC बार में भी फोर्स क्या होना चाहिए, टेंसाइल।
अगर AC बार में फोर्स कॉम्प्रेसिव है तो BC बार में भी फोर्स क्या होना चाहिए, कॉम्प्रेसिव। देखिए ये चीज हमें पता है व्हाट इज टेंसाइल फोर्स एंड व्हाट इज कॉम्प्रेसिव फोर्स। अगर मान लीजिए एक रॉड है, इस पर अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंसाइल। अगर इसको खींचने, इलोंगेट करने की कोशिश करें ये फोर्सेस, तो वो क्या हो जाएंगे, टेंसाइल फोर्सेस। सिमिलरली अगर इस रॉड को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो इट विल बी व्हाट, कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर है मेरी बात? तो अगर जॉइंट के ऊपर हम इस टेंसाइल फोर्स को दिखाना चाहें, मान लीजिए इन दोनों बार्स में द फोर्सेस इज टेंसाइल, तो देखिए अब FBD देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा FBD को। मैंने इसको कट कर दिया यहां से, तो दो फोर्स आएंगे, देखिए एक टेंसाइल, ये रहा एक T, और इतना ही फोर्स इस जॉइंट पे आएगा उल्टे डायरेक्शन में। तो टेंसाइल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द जॉइंट, ये पता ही है, एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द जॉइंट, सच दैट देखिए अगर इस बार को मैं यहां पे फिर मिलाऊं तो ये फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो, क्योंकि दिस इज एन इंटरनल फोर्स। सो इसीलिए हमें ये पता ही था कि टेंसाइल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द जॉइंट, वेयर एज कॉम्प्रेसिव फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द जॉइंट। तो मैं जॉइंट C का FBD बना रहा हूं, तो यहां पर एक टेंसाइल फोर्स T ऐसे है और एक इसमें भी T क्या है, बोथ आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। ये एंगल कितना हो गया है, 60 डिग्री। ये क्या है हमारा F, और ये क्या है हमारा 100 किलो न्यूटन। ये एंगल कितना हो गया है, 45 डिग्री। बाकी के एंगल्स निकाल लेते हैं, ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये x एक्सिस है हमारा और ये मान लीजिए y एक्सिस है। तो सिग्मा x fx जीरो कर लेता हूं, मेरे को t नहीं निकालना, आई नीड टू कंप्यूट ओनली f। तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा fx इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 cos 45, that is 100 by root 2, 100 by root 2, that is 70.7, इतना ही आ जाएगा लगभग 70.7। यूनिट सही कर लीजिएगा ऑप्शंस में, इट इज किलो न्यूटन। क्लियर है मेरी बात, सिंपल था एकदम ये तो। ओके, अगर t निकालना हो तो क्या करेंगे आप, सिग्मा fy इक्वल टू 0 करेंगे तो t निकल जाएगा। सिंस क्वेश्चन में t निकालने के लिए नहीं बोला गया इसलिए नहीं निकाल रहा हूं, बट अगर t भी बोला जाता तो आप आराम से निकाल लेते। सेकंड, यहां लैमीज थ्योरम नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वी हैव मोर देन 3 फोर्सेस। लैमीज थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन वी हैव ओनली 3 फोर्सेस। लाइक क्वेश्चन नंबर 2, इसको करते हैं, ये लैमीज थ्योरम से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। Let's attempt question number 2 now. Question number 2 सॉल्व कर रहा हूं, सभी लोग अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, इफ पॉइंट A is in equilibrium under the action of applied forces, the value of tension TAB and TAC are as, टेंशन है तीनों फोर्स, because all the forces are away from the joint. So this is a tensile force. ये FBD बना के दिया है हमें already. This is TAC. This is TAB. And this is 600 Newton. Obviously तीन ही फोर्स है तो आप कौन से थ्योरम का यूज करेंगे, लैमीज थ्योरम। We can easily apply the Lami's theorem here. ये पॉइंट A है हमारा। तो एज पर लैमीज थ्योरम हम क्या बोलेंगे, मुझे क्या निकालना है, नीड टू फाइंड TAB एंड TAC। ये बचे हुए एंगल क्या है, 90 डिग्री, कोई खास नहीं रहेगा, अब तो हो जाएगा। दीज आर 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या होगा बीच वाला, 90 डिग्री। ओके, बाय लैमीज थ्योरम हम क्या लिखेंगे, यहां लैमीज थ्योरम चलेगा एकदम आराम से। बाय लैमीज थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, TAB बाय साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू TAC बाय साइन ऑफ 90 प्लस 60 डिग्रीज।
इज इक्वल टू 600 बाई साइन ऑफ 90 डिग्रीज। तो दिस इंप्लाइज TAB क्या हो जाएगा? TAB कितना हो जाएगा? 600 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो 300 √3 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना? 520 न्यूटन्स। तो TAB आ गया। सिमिलरली TAC भी निकाल लेंगे। TAC कितना होगा? 600 cos 60 डिग्री इज हाफ, दैट इज 300 न्यूटन। So correct answer is A. A for Ahmedabad. Question number 3 की तरफ proceed कर रहे हैं. Now proceeding towards question number 3. Interesting question है. Let's see. Question number 3. Solve करेंगे. Answer आएगा D. काफी लोगों का आंसर C भी आया होगा, but C is the wrong answer. Correct answer would be D. देखिए कैसे करेक्ट आंसर होगा। ये पुली वाले सवालों ने काफी परेशान किया हमें। आज मैं इस क्वेश्चन को करके पुली के कंसेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A uniform rod AB of length L and weight W is hinged at A and tied to a weight W1 by a string at B. The massless string passes over a frictionless pulley of negligible dimension at C. Negligible dimension is as shown in the figure. If the rod is in equilibrium at horizontal configuration, then correct option निकालना है, it is W1 और W के बीच का relationship बताना है। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पुली है यहाँ पे नेग्लिजिबल डायमेंशन की, फिक्स्ड है यहाँ पे, इससे एक वेट लटक रहा है यहाँ पे, डेट इज W1। एक स्ट्रिंग यहीं से पास होके यहां पर आई है, इट इज एट पॉइंट B और यहां पे है ये पॉइंट A। ABC पॉइंट, क्लियर है? AB रॉड का मास दे रखा है, लेंथ L है और ये वाला भी लेंथ क्या है? नेग्लिजिबल डायमेंशन है पुली का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ऑब्वियसली फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एक वेट यहां पे लटक रहा था W1, मान लीजिए वेट इज W1। ओके, मुझे W1 और W के बीच का रिलेशनशिप लेना। W क्या? इट इज द वेट ऑफ द रॉड, मिड पे लगेगा उसके W, तो इसको L/2 बोल देता हूं, ये भी क्या हो जाएगा? L/2। क्लियर? बहुत बढ़िया। सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सिंपल है ये। पहले इस पुली के कंसेप्ट को समझिए। अगर मान लीजिए यहां पर टेंशन T है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो यहां पर अगर टेंशन T है तो यहां पर टेंशन, ये T cos 45 डिग्री नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत जन मिस्टेक कर देते हैं। अगर एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग है और वो मासलेस है और पुली फ्रिक्शनलेस है, तो हर जगह स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? सेम। अ कॉन्टिन्यूअस massless string will have same tension everywhere. टेंशन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। एक जगह अगर टेंशन T है तो हर जगह स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? T। वो स्ट्रिंग के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन। अगर एक कॉमन मासलेस स्ट्रिंग जा रही है, अगर एक टेंशन T यहां पर है, तो इधर भी टेंशन क्या होगा? T होगा। दैट्स इट। अब FBD बना लेते हैं सबके इंडिपेंडेंटली। FBD मतलब क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। FBD नहीं बनाएंगे सही से तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सवाल होने वाले नहीं है। सबसे पहले इस W1 का FBD बनाऊंगा, तो इस W1 के FBD पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? फ्री बॉडी में हम सारे फोर्सेस दिखाते हैं, दैट इज W1 एंड T। इक्विलिब्रियम में है तो T इज इक्वल टू व्हाट? W1। पहला इक्वेशन आ गया, मतलब T क्या है? W1। AB रॉड का मैं FBD बनाऊंगा। AB रॉड का अगर मैं FBD बनाऊंगा तो कौन कौन से फोर्सेस नजर आएंगे मुझे? ये A है, ये B है। B के ऊपर एक टेंशन आएगा इस तरीके से T, इसका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। एक W वेट होगा L/2 पर, और यहां पर दो रिएक्शंस होंगे, ध्यान देंगे आप, दो रिएक्शन होंगे, एक नहीं, एक
हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, मान लीजिए HAV। क्लियर है? दो रिएक्शन। मुझे W और W1 के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो HA और VA निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बार में सवाल हो जाएगा सॉल्व। सो हमें ये HA और VA निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मोमेंट लीजिएगा, अबाउट पॉइंट है, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो कर सकते हैं, इट विल गिव सेम रिजल्ट। इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा MA इक्वल टू 0। ठीक है, सिग्मा FX सिग्मा FY नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हमें HA और VA पता नहीं है, तो इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा सिग्मा MA इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या, T sin 45 डिग्रीज इंटू L, इसका मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। W का मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, W इंटू L बाई T कितना है, W1, देयरफॉर W1 बाई √2 इज इक्वल टू W बाई 2। तो W1 और W के बीच का रिलेशनशिप लाना था, तो दिस इंप्लाइज W1 इज इक्वल टू W बाई √2। दैट इज करेक्ट आंसर इज व्हाट, D। जिनका आंसर C आया उन्होंने एक मिस्टेक क्या की, टेंशन का कंपोनेंट ले लिया। कभी भी आप टेंशन का कंपोनेंट नहीं लेंगे, अगर एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग है तो उसमें हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, एक बार गेट में आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, अ रोलर of weight W is rolled over the wooden block as shown in the given figure. The pull F required to just cause the said motion. तो एक रोलर है हमारा, ये देखिए एक रोलर है, सिलेंड्रिकल रोलर है, ये ऐसे एक ऑब्स्टेकल पे रेस्ट कर रहा है इस तरीके, दिस इज एन ऑब्स्टेकल हियर, दिस इज एन ऑब्स्टेकल हियर, ये ऑब्स्टेकल। रोलर का वेट कितना है, W, रोलर का वेट है W, और एक फोर्स F लग रहा है, और ये एंगल गिवन है हमें ना, दैट इज 30 डिग्री। मुझे वो फोर्स F की वैल्यू निकालनी है जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला हो। समझते हैं इसका मतलब क्या है? आप ध्यान दीजिए थोड़ा, यहां पर F की वैल्यू दे रखी है मुझे, F की वैल्यू कितनी है, द पुल F रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज द सेड मोशन। ओके, F की वैल्यू निकालनी है W के टर्म्स में, ठीक है, निकालते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे आप कि जब आप इस तरीके से रोलर को पुल करेंगे तो क्या होगा, ये रोलर इस ऑब्स्टेकल के ऊपर रोल करके निकल जाएगा। अगर इस रोलर का मैं FBD बनाऊं किसी भी पॉइंट पर, जब ये इक्विलिब्रियम में, तो अगर इसका FBD बनेगा तो FBD में क्या नजर आएगा, एक तो फोर्स F नजर आएगा, एक फोर्स F नजर आएगा, और क्या नजर आएगा, वेट W, और क्या नजर आएगा, सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी दिखाएंगे, रिएक्शन आएगा ग्राउंड से, दैट इज R1, और एक रिएक्शन यहां से आ जाएगा, दैट इज R2। तो ये सारे फोर्सेस आएंगे। दिस R2 शुड पास थ्रू पॉइंट सेंटर। अगर ऐसा नहीं होगा तो नेट मोमेंट जनरेट हो जाएगा, फोर्सेस अगर कॉन्करेंट नहीं होंगे तो देयर विल बी नेट मोमेंट, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में तो हो ही नहीं सकता। देयरफॉर R2 शुड पास थ्रू दिस पॉइंट, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब देखिए जैसे जैसे F की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे R1 की वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी, और जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा उस समय ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, लॉस होगा, मींस R1 विल बिकम इक्वल टू 0 एंड द एक्सेलरेशन शुड बी 0 सच दैट अगर F को मैंने थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ाया है उस पॉइंट के बाद तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, रोल करके चला जाए। तो एट जस्ट स्टार्ट ऑफ मोशन, एट जस्ट
start of motion, at just start of motion, क्या होगा? R1 should be 0 and acceleration should also be 0. That is, and the body and the roller should be in equilibrium. हो गया बस. कैसे हो गया? तो तीन ही फोर्स बचे एंड ऑल द फोर्सेस आर कॉन्करेंट. तीन फोर्स हैं, एक F है, एक W है और एक क्या है हमारा R2. R2 ये रहा. तीन फोर्सेस, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? ऑब्वियसली लैमीज थ्योरम. बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर लैमीज थ्योरम से करेंगे. नॉर्मली Fx Fy से भी कर सकते हैं, बट लैमीज थ्योरम से करेंगे तो एक ही लाइन में हो जाएगा आंसर. देखिए कैसे. ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्रीज. खत्म खेल. तो अब क्या लिखेंगे आप? हमें क्या निकालना? R2 नहीं निकालना, हमें F और W के बीच का रिलेशनशिप बताना है. ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 30 डिग्रीज. सिमिलरली हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 डिग्रीज. क्लियर है? So therefore by Lami's theorem हम क्या लिखेंगे? By Lami's theorem क्या लिख सकते हैं हम? F by sin of 180 minus 60 is equal to W by sin of 180 minus 30. Sin 30 डिग्री हाफ, sin 60 डिग्री √3/2. √3 वहां पे ले जाएंगे. दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3W. देख लीजिए जो भी आंसर है, that is our answer will come out to be C. C is the correct answer, that is F is equal to √3W. फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है. लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, तो सिंपल क्वेश्चन था. बस ध्यान रखना था कि जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा उस समय क्या होगा? हमारा रिएक्शन 0 हो जाए. R1 विल बी जस्ट 0. फिफ्थ भी देखिए ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 उसको भी सॉल्व करते हैं. फिर से बोला गया है कि एक रोड रोलर है, एक रोलर है हमारे पास. इट इज अगेन रेस्टिंग ऑन अ ऑब्स्टेकल. एक ऑब्स्टेकल है यहां पे. अगेन वी हैव अ ऑब्स्टेकल हियर. ये सी पॉइंट है हमारे पास. दिस इज अ सी पॉइंट और ये हमारा ओ पॉइंट. दिस इज अ ओ पॉइंट और दिस इज पी. ओके. The road roller shown in the given figure is being moved over an obstacle by a pull P. The value of P required will be minimum when it is. मुझे एंगल निकालना है P और CO के बराबर जब P की वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो. एंड बोला गया है अगेन द मिनिमम फोर्स P रिक्वायर्ड. तो मतलब टू द वैल्यू ऑफ P रिक्वायर्ड विल बी मिनिमम व्हेन, मतलब इस मोशन को जस्ट स्टार्ट करने के लिए जो वैल्यू ऑफ P रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी द मिनिमम P. तो व्हेन द मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, फोर्स P is मिनिमम. तो वापस से हम इसका FBD बनाएं. अगर रोलर का FBD बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? रोलर का अगर FBD बना दूं फिर से तो ये मेरे पास एक P आ जाएगा, यहां से एक R1 मान लो और ये हमारा क्या हो जाएगा? R2 और इसका वेट होगा रोलर का डेट इज W. मान लो ये एंगल W तो कांस्टेंट है, ये एंगल देखो बीटा भी कांस्टेंट होगा. वेरी क्या कर सकता है? एंगल अल्फा. इसके हिसाब से भी P की वैल्यू वेरी करते जाएगी. R2 एट जस्ट स्टार्ट ऑफ मोशन मैं बोल सकता हूं
क्या बोल सकता हूं, एट जस्ट स्टार्ट ऑफ मोशन R2 is equal to 0 and roller is in equilibrium. At just start of motion R2 equal to 0 and roller is in equilibrium. फिर से देखिए तीन ही फोर्स बच गए मेरे पास. कौन कौन से फोर्स रह जाएंगे, एक तो देखिए फोर्स P रह गया और एक क्या रह गया R1, एक ये रहा R1, such that this angle is alpha plus beta और ये रहा हमारा W. क्लियर है. और ये एंगल क्या बोल सकते हैं हम, 90 माइनस बीटा. सो दिस एंगल विल बी 90 प्लस बीटा. कोई दिक्कत नहीं है ना. ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस बीटा. सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस बीटा और ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस बीटा. देयरफॉर बाय लैमीज थ्योरम, अगेन लैमीज थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं. हम क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं कि P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस बीटा. ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, यहां ये वाला एंगल, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है. सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस अल्फा प्लस. Therefore, P by sine of 90 plus beta is equal to W by sine of 180 minus alpha plus beta. This implies P is equal to कितना हो गया, W by sine of alpha plus beta equal to क्या होगा ये, cos beta. So for a given value of beta and W, P मिनिमम कब होगा, जब साइन अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम हो. एंड साइन अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम कब होगा, व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री. तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ W एंड बीटा, P इज मिनिमम when sine alpha plus beta is equal to 1. This implies alpha plus beta is equal to 90 degree. Therefore, P should be perpendicular to line CO. Therefore, P is perpendicular to the line CO. Clear? Simple था एकदम. But interesting question था, that is question number 5. Now let's proceed towards question number 6. नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. तो ऐसे हम लैमीज थ्योरम को यूज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं. So we have a system here. The tension in the cable making angle theta will be minimum when the value of theta is. Weight W हमें दे रखा है. Tension means away from the joint. T1 है और ये एक और टेंशन है इस केबल में, that is T2. बोल सकता हूँ ऐसे, एकदम बोल सकते हैं T1 and T2. दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल थीटा, पता नहीं हमें वो थीटा का एंगल निकालना है सच दैट T2 इज मिनिमम. अगेन थ्री फोर्सेस, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. सो लैमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय लैमीज. इस टाइप का तो क्वेश्चन अभी पहले ही कर लिया, अब तो ये बहुत सिंपल हो गया. थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, T2 बाय, ये तो 90 प्लस 60 हो गया, T2 बाय साइन ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू W बाय, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस
60 plus theta. So W by sine of 180 minus 60 plus theta. लिख सकता हूँ ऐसे, एकदम लिख सकते हैं. This implies T2 is equal to क्या हो जाएगा? W by sine of 60 plus theta into cos of 60. T2 is minimum. Therefore, T2 is minimum when sine 60 plus theta is equal to 1. This implies theta is equal to how much? 30 degrees. That is, जब theta 30 degree के बराबर होगा, then tension T2 will be minimum. So correct answer is what? B. Option B is the correct answer. Question number 7th कर लेते हैं solve. Let's start solving question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं. ऐसे एक एक करके मैं सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपके वर्कबुक के. जस्ट वी हैव टू फॉलो द क्लासेस. आपको खुद ही करते जाना है. इस क्लास के बाद आप देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बचेगा ही नहीं. हम क्लास के साथ साथ ही सारा प्रैक्टिस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 बस देखते जाइए. मैं एफबीडी कैसे बना रहा हूं बार बार. टेंसाइल फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट, कॉम्प्रेसिव फोर्स टुवर्ड्स द जॉइंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. A uniform beam AB pinned at A is held by the cable BC in the position as shown. If the tension in the cable is 200 kgf, then the weight of the beam and the reaction at A on the beam are respectively. तो एक बीम दे रखा है हमें, इस तरीके से एक बीम दिया हुआ है हमें. ये रॉड है या बीम, जो भी बोलना चाहें हम. A है, ये B है और ये C है. इसमें टेंशन दे रखा है 200 kgf, मतलब 200 kg फोर्स. मुझे वेट W निकालना है और रिएक्शन एट A निकालना है सच दैट द बीम इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो मैं क्या करूँ अब, ये एंगल्स दे रखा है. पहले सारे एंगल शो कर देता हूँ. ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी कितना है? 60 डिग्री. क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. तो लेंथ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें. ओके, ठीक है, इतना ही डेटा है और कुछ चाहिए नहीं. ए बी रॉड का मैं एफबीडी बना देता हूँ. तो ए बी रॉड का अगर एफबीडी बनाएंगे तो क्या क्या नजर आए? एक तो देखिए टेंशन T नजर आ जाएगा. T कितना है? 200 kgf. क्लियर है? ये एंगल नजर आएगा, डेट इज 60 डिग्री. ए बी रॉड का एफबीडी बना रहा हूं मैं. दिस इज द एफबीडी फॉर ए बी रॉड. ए बी बीम या रॉड जो भी है ये. ओके, दिस इज 60 डिग्री. बहुत बढ़िया. ये एंगल दे रखा है हमें, डेट इज 60 डिग्री अगेन. और ये एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री. ये W मिड पे लगेगा, L/2 L/2 मिड पे लगेगा ऑब्वियसली. यहाँ पे दो रिएक्शंस होंगे, ध्यान देंगे आप. एक रिएक्शन नहीं होगा, दो रिएक्शन होंगे. और जरूरी नहीं है रिएक्शन इज टुवर्ड्स द रॉड, अलग भी हो सकता है. तो RA या VA बोल देता हूं इसको, और ये हो जाएगा हमारा HA. क्लियर है? सिंपल है एकदम. दो रिएक्शन होंगे, बस इस चीज का ध्यान देंगे. एक रिएक्शन लेंगे तो आपका आंसर गलत आना स्टार्ट हो जाएगा. तो पहले W फाइंड कर लेता हूं. W के लिए क्या करूंगा? सिग्मा MA इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम. हम क्या बोल सकते हैं? सिग्मा MA इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज सिग्मा MA करूंगा तो देखो क्या क्या आएगा. T साइन 45 डिग्री इंटू 60 डिग्री. T साइन साइन 60 डिग्री इंटू L एंटी क्लॉकवाइज. और W के कारण क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा? L/2 cos 30 डिग्री. तो W इंटू L/2 cos 30 डिग्री. सॉल्व कर लो, खत्म करो. This implies T is 200. √3/2 is equal to W by 2 into √3/2. कैंसिल कर लो इसको. तो W कितना आ गया? W is equal to 400 kgf. वेट तो आ गया. अब रिएक्शंस निकालना है. रिएक्शंस भी बहुत सिंपली निकाल सकते हैं. सिग्मा Fx 0 कर लीजिए और सिग्मा Fy 0 कर लीजिए. नाउ
फॉर इक्विलिब्रियम एक और कंडीशन होगी, क्या होगा वो, सिग्मा एफ एक्स 0. दिस इंप्लाइज एच ए इज इक्वल टू क्या होगा, एच ए इज इक्वल टू, ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा 30. तो हम क्या लिख सकते हैं, एच ए इज इक्वल टू हाउ मच, 200 cos 30 degrees is equal to how much, 100√3 kgf. अभी VA भी निकालना है तो सिग्मा Fy इक्वल टू 0 कर लो. दिस इंप्लाइज क्या होगा, ये सिग्मा Fy 0 करूंगा तो क्या आना चाहिए, VA प्लस T that is 200 sin 45 degree, sin 30 degrees sorry, is equal to W. This implies VA is equal to, W is how much, 400 kgf. So 200 by sin 30 degrees is 100, that is 300 kgf. This therefore RA क्या होगा, अंडर रूट HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100√3 का स्क्वायर, 100 तो कॉमन ले लो, तो 100√3 प्लस 9, 9 plus 3 12, that is 200 kg. So the correct answer should be D. जिन्होंने केवल एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन लिया होगा उनका शायद आंसर 100√3 आ रहा, बट रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में उसको रिजल्टेंट लेना, ध्यान रखें. तो करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, 200√3 kgf, दैट इज ऑप्शन डी. अब इसकी बात नेक्स्ट क्लास में.